Good afternoon, friends. In the previous session, we already started with rotational dynamics, which is very first chapter of your newly established physics. In this lesson, we are going to see the analogy between translational motion and rotational motion. So, what do you mean by analogy? Analogy means a comparison. It's a comparison between physical quantities. So ये कंपैरिजन हमें किस में करना है? रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन. ये कंपैरिजन स्टडी करना क्यों जरूरी है या आपको आगे जाके समझ में आएगा. हमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो समझना है वो इस एनालॉजी से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो इनिशियली वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसलेशनल मोशन and rotational motion. Translational motion इसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी. Translational motion means the motion of system of particles along the straight line. अब इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे. Suppose this is the object which is initially at position A. In certain time t, this object is moved from position A to position B. Let's take an example. Suppose this is the block. This block is initially at position 1. Block has infinite particles. Consider two particles A and particle B. When this object is translated or moved from position 1 to position 2, this A particle is displaced to here, say A dash, and B particle is displaced to here, say B dash. What do you observe here? Both the particles are displaced by same amount. Let's say it as S. This S is called as a linear displacement. So whenever the particle is moved from one point to another point, the displacement is generated, which is called as a linear displacement. अब जब particle एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है तो वेलोसिटी जनरेट होगी और ये वेलोसिटी जो है इट्स ऑफ टू टाइप्स. वन इज एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स नोटेशन इज v bar. एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t. And instantaneous velocity, this is the velocity at certain instant. That's why whenever you are discussing about certain instant, the time is very small. Let the small increment in time is delta t, which is tending to 0. It means the time is tending to 0. What does it mean? Time is not 0, but it is tending to 0, means a very small time. Limit delta t tends to 0, del s upon delta t, where del s is small increment in displacement and delta t is small increment in time. In terms of derivative, we can also write it as ds by dt, and we can read it as rate of change of displacement. Rate of change of displacement with respect to time. This is instantaneous velocity. After that, if this velocity changes, then acceleration is produced. So acceleration, which is denoted by a bar, which is again having two types, average acceleration and instantaneous acceleration. Average acceleration क्या होगा? फिर से इसी से कंपेयर करो. वेलोसिटी क्यों क्रिएट होती है? डिस्प्लेसमेंट चेंज होता. एक्सेलरेशन क्यों क्रिएट होगा? वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. Change of velocity divided by change of time, which is also v2 minus v1 upon t2 minus t1. v2 stands for final velocity, which is at this position. v1 is initial velocity, which is at this position. So vt minus v1 is change of velocity upon change of time. Instantaneous acceleration, once again at certain instant, it is limit delta t tends to 0, means time is very small. Small increment in velocity upon small increment in time. This is called as a instantaneous acceleration, which is in the form of differentiation. It is dv by dt, rate of change of velocity with respect to time. These are the three basic quantities related to translational motion. First one is displacement, linear displacement. All the particles are moving in a straight line.
velocity which is rate of change of displacement, acceleration rate of change of velocity. Now after discussing the translation motion, come to rotational motion. Suppose the particle, सबसे पहले आप लोगों को रोटेशनल मोशन क्या है डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल मोशन क्या है, when the system of particles are moving along the circumference of circle about same common point or same common axis, then this motion is called as a rotational motion. For example, ये ऑब्जेक्ट इस कॉमन एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे सपोज आप पार्टिकल लेते हो तो ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कल परफॉर्म करेगा, ये पार्टिकल लेते हो तो आप ये सर्कल परफॉर्म करेगा. दिस इज द रोटेशनल मोशन. अब इस रोटेशनल मोशन की जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे डिस्कस कौन सी की जाती है. सबसे पहले सपोज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद सेंटर O. Initially, suppose this particle is at A. Now, the position of particle A is denoted by a vector drawn from center, which is called as a position vector. अब आप लोगों को पता है this is the radius of circle, so magnitude of this vector is r, and it is a vector quantity, that's why it is r bar. This r bar is called as a position vector. R bar को क्या कहेंगे हम? Position vector. So position vector is showing the position of particle at any instant. Now suppose this particle is moving in an anti-clockwise sense. कैसे घूम रहा है? Anti-clockwise sense. As anti-clockwise sense में घूम रहा है तो ये A particle कहाँ पे आएगा? B. Suppose A से B आने के लिए इसको टाइम लगा T. Now this is the position vector of B. आप लोग देखोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है तो ये भी आर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हुई. दिस इज आउटवर्ड, दिस इज आल्सो आउटवर्ड. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज OB बार व्हिच इज इक्वल्स टू R बार. नाउ जब ये पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ तब क्या हुआ? इस सेंटर पे एक एंगल ट्रेस हुआ. दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे क्या हुआ? जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, सिमिलरली यहाँ पे पोजीशन A टू पोजीशन B, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आफ्टर दैट कितने टाइम में हुआ है? T में. चलो वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी? ये लीनियर से रिलेटेड था, लीनियर. अब ये रोटेशन से रिलेटेड है, रोटेशन से रिलेटेड वर्ड आ गया एंगुलर, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी एंगुलर वेलोसिटी. This angular velocity is denoted by omega. Omega is equal to, अब यहाँ पे आते हैं angular velocity. जैसे linear velocity दो quantities है, average and instantaneous, वैसे angular velocity की भी दो quantities है. One is average and third one is instantaneous. अब आप लोग खुद ही यहाँ पे analogy बना सकते हो. जैसे कि यहाँ पे linear displacement upon time है, तो यहाँ पे average angular velocity क्या आएगी? Angle, that is angular displacement upon time, theta upon t, or simply delta theta upon delta t. And instantaneous acceleration, instantaneous angular velocity क्या आएगी? Limit delta t tends to 0, del theta upon del t. Small increment in angular displacement divided by small increment in time. When time is tending to 0, that is approaches to 0. It is not 0 but approaches to 0 means time is very small, which is equals to d theta by dt. In terms of differentiation, rate of change of angular displacement with respect to time is called as instantaneous angular velocity. अब angular velocity के बाद जैसे यहाँ पे acceleration है तो यहाँ पे भी acceleration है. वो acceleration कौन सा होगा अभी? Yes, angular acceleration. Now इस angular acceleration को हम denote करेंगे alpha से. Angular acceleration once again is of two types. One is average and second one is instantaneous. Average acceleration क्या होगा? देखो अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे linear average acceleration क्या था? Delta v, change in linear velocity. यहाँ पे क्या होगा? Change in angular velocity, delta omega upon delta t. That is omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1. Omega 2 is final angular velocity, omega 1 is initial angular velocity. Instantaneous क्या होगा? When time approaches to 0, तो हम उसको लिखेंगे limit delta t tends to 0.
Small increment in angular velocity divided by small increment in time. In terms of differentiation, it is d omega by dt. उसको हम रेट कैसे करेंगे? Rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. तो देखो यहाँ पे जब हमने इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन में क्या होगा? यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है तो वहाँ पे आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी आती है तो वहाँ पे आता है एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन आता है तो यहाँ पे आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गए हमारे एनालॉगस क्वांटिटीज, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की एनालॉगस क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की लीनियर एक्सेलरेशन। लॉफिकेटिंग तो हम इसको अब देखेंगे टैबुलर फॉर्म में, जैसे कि अब देखो देखो यहाँ पे एक टेबल बना है जिस टेबल में पूरा दिखाया गया है कि यहाँ पे है रोटेशनल मोशन, यहाँ पे है ट्रांसलेशनल मोशन और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज है। सम फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ऑलरेडी वी डिस्कस इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यहाँ हम बाद में जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। So this is called as an analogous quantity। अब कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे आप लोग जो ऑब्जर्व करोगे तो देखो फोर्स, जैसे लीनियर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोगों को डिस्प्लेस करना है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको डिस्प्लेस करना है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में आप सिंपली इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाते हो तो ये पार्टिकल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो लीनियर मोशन। इट मींस सपोज यू वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट in linear motion, you have to apply the force। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को आप लोगों को रोटेट करना है। एक एग्जांपल में नेक्स्ट स्लाइड में लिखा था, देखो इस ऑब्जेक्ट को आप लोगों को मूव करना तो आपने लीनियर फोर्स करना है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल डोर है, ये डोर है, सपोज ऐसे डोर, इस डोर को आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट करने के बाद, रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे फोर्स तो लगाओगे, फोर्स लगाने के बाद ये रोटेट होगा। सपोज यहाँ पे हिंज पॉइंट है, हिंज मतलब पाइवोटेड, जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। अब यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद ये हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप फोर्स डिपेंड, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स। लेकिन अब इफेक्ट देखो, ये फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया, सेकंड केस यहाँ पे लगाया, थर्ड केस यहाँ पे लगाया। अब जब आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो ये इजीली रोटेट नहीं हो रहा, यहाँ पे लगाते हो थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, यहाँ पे वो सिंपली रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं और ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल इफेक्ट और फोर्स इसमें कुछ रिलेशन है। रोटेशन इफेक्ट कब बढ़ रहा है? जब फोर्स का डिस्टेंस यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ये जल्दी रोटेट हो रहा है। इट मींस ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जो रोटेट कर रही है, these physical quantities depend upon applied force as well as the distance of force from the point of rotation or axis of rotation। तो देखो यहाँ पे फोर्स है, ये रॉड है, ये रॉड यहाँ पे सपोज हिंज किया हुआ है, हिंज किया हुआ है मतलब पाइवोट किया है जिसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। ये फोर्स है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया था, यहाँ पे फोर्स लगाया था, इस केस में मुझे कम फोर्स लगाने के बाद भी रोटेशन इफेक्ट जल्दी मिल रहा था। इसका मतलब फोर्स और ये डिस्टेंस मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज टॉर्क। दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड जब हम कंसीडर करेंगे तो ये जो होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिखा है? r, सो f इनटू r, दिस इज द टॉर्क। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने एनालॉजी क्या देखी कि लीनियर मोशन में सपोज आप लोगों को फोर्स लगता है तो रोटेशनल मोशन में आप लोगों को क्या लगेगा? टॉर्क। सो सिंपली यहाँ पे लीनियर फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग आएगा वो आएगा टॉर्क। आप आगे जाके देखोगे न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूसेस फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद आप वर्क का देखोगे, वर्क जब आप वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और खाली फोर्स अप्लाई करने से वर्क नहीं होता, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट जरूरी होता है। तब वर्क क्या होता है? जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी 9, 10 स्टैंडर्ड में बहुत जगह पे देखी है, 1/2 mv², m इज द मास, v इज द लीनियर वेलोसिटी।
लीनियर मोमेंटम, कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज m इज मास, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है m विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे फोर्स में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी। सो यहाँ पे कौन सी लीनियर क्वांटिटीज आ गई? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इसको हम जब एंगुलर में लेके जाएंगे तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स को टॉर्क, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो फोर्स को कन्वर्ट किस में किया? टॉर्क। एक्सेलरेशन को किस में कन्वर्ट किया? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन फैक्ट ये हो रहा है कि ये मास है क्या, और इसका रोटेशनल एनालॉग क्या मिलेगा? This is a very important fact which we are going to see in next lecture.